اور جہاد کے پرچم کے ٹھیکیدار تو تم تھے. نظر تو تمہیں آنا چاہیے تھا, خود تو نظر آئے نہیں, گھروں میں بیٹھ کے قصیدہ گوئی کر رہے ہو. تم کدھر ہو؟ اگر تمہیں جانے میں کوئی مسئلہ, ٹکٹ دیتا ہوں, آؤ ایئرپورٹ پہ لائن لگاؤ, میں ٹکٹ دیتا ہوں, جا کے دکھاؤ نا. پھر تم تو صرف وہاں گئے ہو جہاں سے ڈالر ملتے ہیں, یہاں تو ڈالر نہیں ملیں گے. یہ تو اوریجنل جہاد ہے, یہ تو جہاد فی سبیل اللہ ہے. تو یہ بک بک کرنے کے لیے یہی رہ گئے. یہاں تم نے تو ساری زندگی چندے ہی مانگے, آج کہیں جنگ لگا دو یہ پیٹیاں لے کے چندے مانگنا شروع ہو جائیں گے, اوپر سے باتیں کرتے ہیں. یہ ساری فورسز جن کا یہ پروپیگنڈا ہے ان کا حق تھا جا کے لڑنا. بھائی فلسطین کے اندر 80% تو ہیں اہل حدیث سلفی ہارڈ کور, 20% ہے ہارڈ کور دیوبندی. تو آپ کدھر ہیں؟ آپ بتائیں نا اپنے بارے میں, آپ کدھر ہیں؟ اچھا, آپ یہاں پہ دمبے پھوڑ رہے ہیں, آج تک مشٹنڈے بن گئے کھا کھا کے جہاد کے نام پر. کیوں نہیں بولے اس بات کو؟ جب بات کریں گے تو جواب آئے گا پوری طاقت سے, جس زبان میں کریں گے اسی زبان میں آئے گا. بند, ڈر سے نام بھی نہ لو, مسلمانوں کی اوقات, ڈر سے نام بھی نہ لو. کنٹرول کہاں سے ہو رہا ہے؟ انڈیا سے, کلکتہ سے. اس کا جو ہب ہے وہ کلکتہ ہے. اچھا لسن کر دیا گیا, تو پھر یہ پاکستانی عوام اتنا تو کر سکتی ہے کہ حق کی آواز کو آگے بڑھائے, اور یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ پریشان نہ ہو, مزے لیں, میچ دیکھیں, ورلڈ کپ دیکھیں. ایسے ادھر ورلڈ کپ پورا دیکھا, ورلڈ کپ ختم ہوا, ہائے اللہ حماس کے بچے اور عورتیں شہید کر دیے. وہ جو 9 گھنٹے کے دورانیے میں جو سٹے کے اڈے دیکھ رہے تھے, وہاں حماس یاد نہیں آئی, اس کے ختم ہوتے ہی حماس یاد آ گئی. منافقت کی حد ہوتی ہے یار. منافقت تو خیر بہت ساری جگہوں پر ہو رہی ہے. ہماری ریسرچ کا نام ہے دی فال آف اکھنڈ بھارت, ٹھیک ہو گیا, 2026, جس کا میں نے آپ سے دعویٰ کیا تھا کہ اس کو خاک چٹاؤں گا. ٹھیک ہے, آسانی لشکر ہے, وہ پوسٹ کی کاش کی چوکیداری کر رہا ہے اور پاکستان پہ حملے کی دھمکیاں دے رہا ہے, پاکستان کے فوجیوں کو شہید کر رہا ہے. پاکستان کے اندر 1 لاکھ ماؤں بہنوں کو چتڑوں میں تبدیل کر دیا ان کے خراسانی لشکر نے. تو خراسانی لشکر میں ان کی پیشگوئی غلط ثابت ہوئی. جے ہند, سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پر ایک اور لیٹسٹ ویڈیو میں. دوستو آپ نے ویڈیو کا انٹرو تو دیکھ لیا ہوگا, ساری ویڈیو ہی فل پیسہ وصول ہے. اور اگر اسی ویڈیو کا پارٹ 1 دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کے ویڈیوز میں جا کے آپ کو 5ویں یا 6ٹھی ویڈیو ملے گی اسرائیل انڈیا فرینڈشپ کے نام سے ٹائٹل سے, وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا. دوستو جب سے حماس نے آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح سے اسرائیل پر حماس نے اٹیک کیا تھا, اس کے بعد اسرائیل آج تک ایک ہی تابڑ توڑ غزہ پر بمباری کر رہا ہے اور آئے دن حماس کا وناش کر رہا ہے. اور اسرائیل نے پوری طرح سے ٹھان لیا ہے کہ حماس کا اس بار خاتمہ کر دیا جائے گا, کیونکہ دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار پہلے بھی حماس اسرائیل پر اٹیک کر چکا تھا اور اسرائیل کے کافی لوگوں کی جان گنوانی پڑی تھی. اس بار بھی حماس نے کئی لوگوں کو اسرائیل کے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح سے ایک میوزک فیسٹیول پہ حملہ کیا اور وہاں پہ لاشوں کے ڈھیر لگا دیے تھے اور بہت سارے لوگوں کو بندی بنایا. لیکن اب اسرائیل جب اپنے موڈ میں آیا تو بالکل تھمنے کا نام نہیں لے رہا, اور اس پر پاکستانی میڈیا میں آپ نے دیکھا ہوگا طرح طرح کے آئے دن بیان بازی ہوتے رہتے ہیں. تو دوستو اب OIC کی بھی ایک میٹنگ ہوئی تھی, اس میں بھی کس طرح دیکھیے اب حماس کے بارے میں اور اسرائیل کے بارے میں جو یوز چل رہا ہے اس کو لے کر پاکستانی میڈیا کی پرتیکریا آ رہی ہے. اور پاکستانی میڈیا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ CIA اور موساد کے ذریعے ہمیں جانکاری ملی ہے کہ عرب دیشوں نے خود کہا ہے کہ حماس کو بالکل پوری طرح سے صفایا کر دیا جائے. تو دیکھیں تو دوستو یہ سب سے پہلے غلطی حماس نے کی تھی, اور غزہ کے لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ ان کو وہاں پر جس طرح ان کو پناہ دی اور فیسلٹی دی تو ان کا خامیازہ وہی بھگتیں گے. لیکن پاکستانی آپ دیکھتے ہوں گے دنیا بھر میں اسلام کی ٹھیکیداری کے نام پہ کود جاتے ہیں اور جگہ جگہ پر چندے کے ڈبے رکھ دیتے ہیں. اس کو اس پاکستانی اینکر نے بالکل باریکی سے بے نقاب کیا اور کہا کہ جہاں پر ہمیں ڈالر دکھتے ہیں وہاں پر ہم کود جاتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان سے کوئی بھی آدمی آج تک غزہ یا فلسطین نہیں پہنچا ہے جہاں پہ ان کے ساتھ لڑائی لڑ سکے. تو دوستو یہ کیول جہاد کے نام پر ایک طرح کا فیک پروپیگنڈا کرتے ہیں, ڈالر کماتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. اس کو لے کر پاکستانی میڈیا کی اور جو اکھنڈ بھارت کے بارے میں بھی دیکھیں کس طرح پاکستانی میڈیا کی پرتیکریا آ رہی ہے کہ پاکستانی میڈیا کہہ رہا ہے کہ ہندو کش سے لے کر آپ نے دیکھا ہوگا برما تک بھی اب بھارت نے اکھنڈ بھارت بنانے کا موڈ پوری طرح سے بنا لیا ہے. جس طرح پہلے آج سے 3000 سال پہلے اسرائیل تھا, ٹھیک اسی طرح بھارت بھی اسرائیل کو ستاپت ہوتے ہی ایک بار پھر سے اکھنڈ بھارت کی طرف جائے گا. تو چلیے ہم دکھاتے ہیں آپ کو پوری طرح سے فل پیسہ وصول ویڈیو. دوستو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا. پلیز آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجیے گا. چلیے کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ. وہ معاملے جو کہ انڈیا کے حوالے سے ہماری ایک پوری سیریز چل رہی ہے اس پر. لیکن OIC کا یہ اجلاس, اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو تقریباً 1 ماہ اور تقریباً 7 دن, اگر عمومی طور پر آپ لگائیں تو 36 دن کے بعد OIC کا یہ سربراہی اجلاس جو ہے وہ آج منعقد کیا گیا. اور ظاہر ہے اس کے تناظر میں اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ سب سے پہلے ذرا اس معاملے پر ہی بات کی جائے. جنگ بندی, واٹ از جنگ بندی؟ یہ تو قتل عام ہے.
जंग तो हुई नहीं, जंग तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी तक हुई नहीं, जंग तो अब होने जाएगी। ये सारी चीज़ें जब सिमटती जाएंगी तो आप तेज़ी से जंग की तरफ आएंगे। आज तो इजलास में ये होना चाहिए था कि तमाम मुस्लिम ममालिक को ऐलान यकमुश्त करना चाहिए था कि आज से ताल्लुकात ख़त्म, इसराइल से जहाँ जहाँ सिफारत खाने वो ख़त्म, और सबसे पहले इस मिस्र के सदर को खड़ा करके कहना चाहिए था कि 24 घंटे में रफ़ा बॉर्डर खोल के पनाह दो उन मासूम औरतों और बच्चों को, और अगर तुम नहीं देते हो तो तुम्हें OIC की रुकनियत से खारिज किया जाता है। तो ये टोपी ड्रामा था मुसलमानों का, मुबारक हो, इन्होंने यही करना था। ये लाइफ लाइन दे रहे हैं इसराइल को। देखे मेरी बात सुने, जंगबंदी कौन मांगता है दुनिया के अंदर? जो डरपोक हो, जो बुज़दिल हो, जो जंग को हार में देख रहा हो। एक बुच्चर कसौड़ा कहा जाता है, इसराइल ना कहें। ये जानवर और हैवानों का सहूनी जमघट्टा जो है अपने इख्तिदाम के करीब है, और मुसलमान सरबराहों से यही उम्मीद थी। मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड इनके वो जो आज पिछले 48 घंटे में हमने कलेक्ट की मालूमात होमलैंड सिक्योरिटी से, CIA से, वो हैरान हैं इन सऊदी बादशाहों पे, इन UAE के बादशाहों पे। वो कहते हैं हम जब इनसे जाते हैं और कहते हैं कि हम इस जंग को रोकने की कोशिश करें, उल्टा आप ना रोकें, आप इस गिरोह को खत्म करें जो हमास है। ऑफिशियल तो ऑफ द रिकॉर्ड तो ये हकीकत है जिसको बताया जाए यहां पर। तो इनकी ख्वाहिश है कि हमास को खत्म कर दिया जाए, इस गजा की बेल्ट पे कब्जा कर लिया जाए और इसको फिर सर उठाने ना दिया जाए। तो आप मुसलमानों पे इतना भरोसा ना रखें, जो कुव्वतें अल्लाह की रजा के लिए लड़ रही हैं वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक लड़। अच्छा, मैं इस सदर ने बड़ी क्लियर आज OIC तो रोक देना। मैंने तो आपको उसकी पार्लियामेंट के एक पॉलिटिकल पार्टी का, उन्होंने तो इसराइल के अड्डे बना रखे हैं अपने मुल्क के अंदर, अमेरिकी अड्डे मौजूद हैं वहां पे, ईरान की सारी जासूसी उन अड्डों से की जाती है, उन्होंने खुद बताया है। तो तुर्की का सदर वहीं बैठा हुआ था ना पार्लियामेंट में, खड़े होकर पकड़ लेता उसका गिरबान कि तुम झूठ बोल रही हो। अच्छा, लेकिन अब अच्छा, 1 नवंबर को जो इनकी 100 साल तकरीबात हुई, उसके अंदर फिर उसने अयादा किया कि आज तक नहीं रोके, वो अड्डे नहीं खत्म किए गए। तो तुर्की की आवाम निकली और उन्होंने अड्डों का घेराव किया। तो आपका मीडिया तो ये नहीं दिखाएगा ना, दज्जाली मीडिया में ये कम तो नहीं पाकिस्तानी मीडिया किसी तरह भी। अच्छा, मैं एक और तरफ भी आ रही थी, अभी आपने कहा, तो अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि हमास अगर इतना ही मजबूत है और उसकी गिरफ्त इतनी ही है जो छोटी मोटी जैसी भी है, तो इनके इसराइली लोगों की कितनी हलाकतें हो रही है, कितने लोग मारे जा रहे हैं? वहां हजारों में मारे जाते हैं, वहां पता चलता है 3 मारे गए इसराइली फौजी, पता चला 4 मारे गए नेटो ममालिक के फौजी। तो ये फिर हमास इसका मकसद है कमजोर दिफा कर रही है ना, हिजबुल्लाह एक कमजोर दिफा कर रही है। ये इस देखें, इस पे आते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा क्योंकि सवाल इंपॉर्टेंस कितना टाइम है आपके मेरे पास है टाइम, आप इसका पहले जवाब। नाउ लिसन, ये गलत बयानी की जा रही है, दुनिया में एक गलत पिक्चर दिखाई जा रही है, और जिसको ये सो कॉल्ड यूट्यूबर जो हैं अपने धंधे के लिए इसको हवा दे रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, देखें गौर से सुने, इस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार कौन सा है? ताकतवर हथियार जदीद दुनिया का टेक्नोलॉजी है। कौन नहीं, हथियार क्या है? टेक्नोलॉजी तो है ना, सोशल मीडिया ना, आवाज। इससे बड़ा तो कोई हथियार ही नहीं है। जब से दुनिया वजूद में आई है आज तक इससे बड़ा हथियार नहीं है। दुनिया में जितने जालिम बादशाह हैं उन्होंने इस आवाज को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की। अब जब टेक्नोलॉजी आई तो टेक्नोलॉजी का खालिक था सहूनी, ठीक है, वही है ना, सारे टेक्नोलॉजी के मालिक तो वही है, यूट्यूब, ये फेसबुक, ये यही है ना। अब आवाज को कैसे कंट्रोल करना है? पैसे छोड़ो, अब आपको मोनेटाइजिंग के जरिए पैसे मिलते हैं। जरा सा आप 19-20 करते हैं, स्ट्राइक आ जाती है, पैसे रुक जाते हैं, आप डर के उनकी अपनी औकात के मुताबिक उनके कहे हुए लाइन पे आ जाते हैं। तो और जो मोनेटाइजिंग नहीं करते और आवाज़ हक बुलंद करते हैं, यानी यहूदियों का नुत्फा नहीं खाते और अपनी आवाज़ हक को बुलंद करते हैं, उन पे स्ट्राइक आती है, उनको बैन कर दिया जाता है। आप आज गजा लिखें, फलस्तीन लिखें, इस्माइल हानिया लिखें, हसन नसरुल्लाह लिखें, स्ट्राइक बंद, पैसा बंद, डर से नाम भी ना लो, मुसलमानों की औकात, डर से नाम भी ना लो। कंट्रोल कहां से हो रहा है? इंडिया से, कलकत्ता से, इसका जो हब है वो कलकत्ता है। अच्छा लिसन, रोक दी आपकी आवाज, आपको आपकी औकात पे छोड़ा, आप पैसों के धंधे के चक्कर में आपने वो लैंग्वेज इस्तेमाल करना शुरू की जिसको कलकत्ता से बनाया जा रहा है। मैंने आपको बोला दो वॉर हैं, एक ग्राउंड वॉर है, एक प्रोपेगेंडा वॉर है, आवाज की वॉर है, माइंडसेट की वॉर है। ठीक है, ये मैं मुझे समझ आ रही है। आपकी आवाज को बंद करके इस माइंडसेट को मजबूत किया जा रहा है, उसी के कहने पे चला जा रहा है, 10 हो गए। ये सेम अगर कॉपी करते हुए आप चले, इराक में जब हमला किया तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का इतना बड़ा चोचा उठाया, जिसको बाद में आज अमेरिकी आवाम उन पे लानत करती है कि तुमने झूठ बोला। तो इस झूठों को सच्चा साबित करने के लिए इस टेक्नोलॉजी वॉर को हिस्सा किया जा रहा है। हमारी आपकी आवाज बंद की जा रही है, हमारे सोशल मीडिया को लॉक कर दिया गया। तो फिर ये पाकिस्तानी आवाम इतना तो कर सकती है कि हक की आवाज
को आगे बढ़ाए और ये भी नहीं कर सकते तो फिर आप परेशान ना हो, मजे लें, मैच देखें, वर्ल्ड कप देखें। ऐसे इधर वर्ल्ड कप पूरा देखा, वर्ल्ड कप खत्म हुआ, हाय अल्लाह हमास के बच्चे और औरतें शहीद कर दिए। वो जो 9 घंटे के दौरानिये में जो सट्टे के अड्डे देख रहे थे वहां हमास याद नहीं आई, उसके खत्म होते ही हमास याद आ गई। मुनाफिकत की हद होती है यार। मुनाफिकत तो खैर बहुत सारी जगहों पर हो रही है। मैं आपसे भी आज कुछ शायद भाई इसलिए जिहाद के परचम, ये जो माइंडसेट है इसको जवाब है डायरेक्ट। ये जिहाद इस्लाम का अलम और जिहाद के परचम के ठेकेदार तो तुम थे, नजर तो तुम्हें आना चाहिए था। खुद तो नजर आए नहीं, घरों में बैठ के कसीदा गोई कर रहे हो। तुम किधर हो? अगर तुम्हें जाने में कोई मसला, टिकट देता हूं, आओ एयरपोर्ट पे लाइन लगाओ, मैं टिकट देता हूं, जाके दिखाओ ना। फिर तुम तो सिर्फ वहां गए हो जहां से डॉलर मिलते हैं, यहां तो डॉलर नहीं मिलेंगे। ये तो ओरिजिनल जिहाद है, ये तो जिहाद फी सबिलिल्लाह है। तो ये बकबक करने के लिए यही रहेगा यहां पर। और ये माइंडसेट जो है इस कॉज को नुकसान दे रहा है ना। ईरान खुल के सामने नहीं आ रहा हो भाई, गोली से लेके, असले से लेके, तोप के गोलों से लेके मिसाइल तक उसी के हैं, तुम्हारे तो नहीं है। तुमने तो सारी जिंदगी चंदे ही मांगे, आज कहीं जंग लगा दो ये पेटियां लेके चंदे मांगना शुरू हो जाएंगे, ऊपर से बातें करते हैं। ये सारी फोर्सेस जिनका ये प्रोपेगेंडा है इनका हक था जाके लड़ना। भाई फलस्तीन के अंदर 80% तो है अहले हदीस सलफी हार्ड कोर, 20% है हार्ड कोर देवबंदी। तो आप किधर हैं? आप बताएं ना अपने बारे में, आप किधर हैं? अच्छा, आप यहां पे दुम्बे फोड़ रहे हैं, आज तक मस्टंडे बन गए खा खा के जिहाद के नाम पर। इस बात को मैं क्यों नहीं बोले इस बात को? जब बात करेंगे तो जवाब आएगा पूरी ताकत से, जिस जुबान में करेंगे उसी जुबान में आएगा। तो ये सवाल जायज था ना, लोगों का सवाल तो ठीक था। तो मैंने भी जवाब दे दिया ना, जायज था ना, औकात बता दी ना। अच्छा, औकात में रहना चाहिए ना। अच्छा ओके, अब मैं अगला सवाल आपसे कर लूं कि देखें एक और, दैट्स ऑल। क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब ये मुआहदा 1924 में हो चुका है, फलस्तीन को सऊदी बादशाह ने यहूदियों के हवाले किया है। तो कौन सा मुआहदा होने जा रहा था? किस चीज का मुआहदा होने जा रहा था? तस्लीम नहीं, बुनियाद ही सऊदी बादशाह ने डाली। ये है ना आपके हाथ में, पढ़े। 1924 ये उस वक्त ये बात हुई थी। जी हाँ, उसके बाद 48 तक बसते रहे और उसके बाद इसराइल को अभी ये जो कबूलियत वाला मुआहदा था, तो कबूलियत क्या, ये तो बुनियादी है ना। सर सवाल तो मेरा भी सुन लें भाई, वो ये 1924 में हो गया मुआहदा। कयामत तक आले सऊद खानदान फलस्तीन की जगह इसराइल को ही तस्लीम करेगा। दैट्स ऑल। मुझे इस पे सवाल कर लूं मैं आपसे? मुझे ये बता देंगे आप कि मैं उस वक्त 1924 में तो मैं तो नहीं थी, आपने ये लाके मुझे नहीं थे ना। ये कटिंग आ गई हमारे पास 1991 में सऊदी अखबार में शाया हुई ना, मेरे पास तो नहीं। ठीक हो गया ना। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आज के दौर हाजिर में जब सूरत हाल तब्दील हो गई ना, पैराडाइम ही दुनिया की शिफ्ट हो गए कि नहीं हो गए, बहुत सारी चीजें तब्दील हुई हैं। नहीं, बादशाहत नहीं हुई ना, वही आले सऊद खानदान चल रहा है। जब तक वो खानदान चलेगा ये इसराइल को तस्लीम किया हुआ। तो हमास ने इसका फायदा उठाया, आप ये नहीं मानते? हमास ने तो अपनी जद्दोजहद आज़ादी की जंग लड़ी है ना। हमास तो हुर्रियत पसंद है ना। हमास कौन है? हमास देखिए, फ़लस्तीनियों की तादाद तो 1 करोड़ से तजाविज़ करती हुई थी ना। जब हालात ख़राब हुए तो जो पैसे वाले थे वो भाग गए, हिजरत कर गए। अच्छा, वहाँ पे अब मौला हुसैन का कौल वाजिब आता है ना कि जब तुम्हें जालिम सर उठाने न दे और दीन तुम्हें सर झुकाने की इजाज़त न दे तो सर कटाने से बेहतर कोई रास्ता नहीं। ये फ़लस्तीन 2 पार्ट में, जो वेस्ट बैंक है उन्होंने सर झुका दिया, जिन्होंने सर नहीं झुकाया और जिहाद का परचम उठाया वो गाज़ा में आ गए और वो हमास बन गई। वो अपनी ज़मीन को आज भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। रास्ता तो उनके पास भी था, चले जाते, दुनिया में अय्याशी करते। पाकिस्तान में भी तो भाग रहे हैं ना सब छोड़ के। देखिए एक डिबेट, एक ही चीज़ है ना, ये इस तरह भाग जाते हैं। लोग समझते हैं जब जहाज डूबे तो चूहे भागते हैं ना, तो वो भाग गए थे। जो बच गए थे वही मुजाहिद थे, वो आज भी लड़ रहे हैं। उन्हीं के ऊपर सारी कश्त खून किया जा रहा है। वही एक्चुअल ईमान अफरोज जो हैं वो लोग हैं। आज भी वो हुर्रियत पसंदी के तहत अपने फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तो वाज़े तौर पे इसको नाजायज़ रियासत का है ना। तो नाजायज़ चीज़ तो पाक सरजमीन पे नहीं आ सकती। ये तो होना है, यानी यरूशलेम जो है या मस्जिद अक्सा जो है उसका ढह जाना तारीख में साबित किया जा रहा है, और ऐसा होगा तो फिर सूरत हाल आगे बढ़ेगी। इस पर आपका क्या तबसरा है? देखें, यही आपको बताना था हमने। चले हम इसी से अपने टॉपिक पे आते हैं जहां हमने आना था। हमारी रिसर्च का नाम है द फॉल ऑफ अखंड भारत। ठीक हो गया। 2026, जिसका मैंने आपसे दावा किया था कि इसको खाक चटाऊंगा। ठीक है, एक ये आज 2014 में इंडियंस और इसराइल का जब गठजोड़ शुरू हुआ, ठीक है, तो इसराइल को एक लाइफलाइन दी इंतहा पसंद हिंदुओं ने। ये सोच इनकी है, इंडियंस की है, कि 3000 साल पहले ये इसराइल था, मुसलमानों ने कब्जा कर लिया, वापस होना चाहिए ग्रेटर इसराइल। जी जी, ओके। वजह क्या थी?
अखंड भारत, अगर ये वार कामयाब हो जाता तो दूसरा वार अखंड भारत था। अब ये जो आपको मैं अर्ज करूं कि खलीज बंगाल से लेके और बहरा अरब तक के दरमियान का जितना ज़मीनी इलाका है, जिसके अंदर कोई हिंदू कश और कोई हिमालय भी मौजूद हैं, ये अखंड भारत का एक तस्वुर है। ओके, ठीक है, समझ। अब इसके अंदर जो ममालिक आते हैं, हाँ। वो हैं इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, म्यांमार और तिब्बत। ओके, यानी कि अखंड भारत तोसी पसंदाना अज़ाइम थे। अच्छा, हिंदुओं को, अपनी इंतहा पसंद हिंदुओं को अपनी कामयाबी के लिए लाजिम था कि इसराइल को 3000 साल पहले की पोजीशन पे ले जाके और इस माइंडसेट को कबूल करवाना, क्योंकि 3000 साल पहले यही अखंड भारत था। ठीक हो गया। यानी कि अगर 3000 साल पहले का इसराइल तस्लीम किया जाए और तोसी पसंदाना अज़ाइम से आगे बढ़ा जाए पाकिस्तान की तरफ, अफगानिस्तान की तरफ, तो दुनिया के अंदर एक एग्जाम्पल मौजूद हो कि वो भी गया है तो हमारा भी हक है। मेरी बात समझने की कोशिश की, इस माइंडसेट को जनरेट किया गया, जिसकी वजह से मैंने अखंड भारत के ऊपर, देखिए आप लोग अखंड भारत को गलत नजरिए से देखते हैं। अखंड भारत है तोसी पसंदाना अज़ाइम, अपनी चीजों को कब्जा करना, पाकिस्तान को भी ले लेना, अफगानिस्तान को भी ले लेना, ठीक है ना। अब इसमें इनको जो सबसे ज्यादा मसला था ना, वो पाकिस्तान और पाकिस्तान में मौजूद उसका एक दिफाई निज़ाम और हिसार, जिसको ISI कहते हैं, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। जो मसला था इंडिया के लिए भी और इस हार्ड कोर यहूदियों के लिए भी, ये दोनों के से हजम होने, ये डाइजेस्ट नहीं हो सकता, ISI इनसे डाइजेस्ट नहीं हो सकती। तो इन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान के अजली दुश्मन, जिसने पाकिस्तान के क़याम की मुखालफत की, उधर अपनी दागबेल डालना शुरू की, जिसका नाम है अफगानिस्तान। ठीक है। इस पूरी पॉलिसी के अंदर अगर आप गौर से देखें तो इन्होंने वो फार्मूला अपनाया कि यहूदियों ने 1924 से लेकर 48 तक फलस्तीनियों से उनकी ज़मीनें खरीदी और खरीदने के बाद अपने आप को तोसी पसंदाना अज़ाइम की तरफ लेके, हम आज ये इसको, क्योंकि टाइम आपने सारा उधर ले लिया, हम इसको सरसरी लेते हैं और अगले प्रोग्राम में इसको कंप्लीट करेंगे। मेरा एक सवाल सुन लेना, इस सवाल की वजह क्या थी, क्योंकि पेशेंट गोइयों पर बहुत सारी बातें चल रही हैं, सब्र कर लें जरा सा, हर एक की अपनी रिसर्च है, हर एक अपने हिसाब से बात कर रहा है। डॉक्टर इसरार के हवाले से ये बिलखुसूस सवाल है। डॉक्टर मैं ले रही हूँ ब्रेक, जरा से इसको एक्सटेंड कर दें ताकि आगे हम 5 मिनट ले लेंगे भले। मुझे सिर्फ ये बता दें कि डॉक्टर इसरार जो पेशेंट गोइयां कर रहे थे, उस पे लोग कह रहे हैं कि हू बहू वही सब कुछ हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप वही पर मामला चल रहे हैं। वो एक अच्छे आलिम थे, उन्होंने जितनी भी पेश गोइयां की हैं, वो अगर आप उन तक ना जाए ना, ये तो 1400 साल से चल रही है ना। तो रसूल खुदा ने की, मौला अली ने की, मौला अली के फॉलोवर भी थे, बिल्कुल, ठीक है ना। अच्छा, अब देखना ये है कि उन्होंने जिस लश्कर को तश्कील देने की बात की, वो था खुरासानी लश्कर। बिल्कुल। अब यहाँ दो माइंडसेट थे, एक हमारा माइंडसेट था, हम कहते थे सूबा खुरासान जो ईरान में है, वहां मौजूद मशहद मुकद्दस जहां इमाम अली रजा आले मोहम्मद का मज़ार है, वो शाह खुरासान है, तो जो लश्कर वहां पे बनेगा वो खुरासानी कहलाएगा। और जो डॉक्टर इसार साहब ये कहते थे कि ये लश्कर जो है, तालिबान जो है, ये खुरासानी लश्कर है। तो अगर आज वो जिंदा होते तो वो देख लेते कि जनाब उनका जो खुरासानी लश्कर है वो पोस्ट की काश की चौकीदारी कर रहा है और पाकिस्तान पे हमले की धमकियां दे रहा है, पाकिस्तान के फौजियों को शहीद कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर 1 लाख माओ बहनों को चिथड़ों में तब्दील कर दिया उनके खुरासानी लश्कर ने। तो खुरासानी लश्कर में उनकी पेशगोई गलत साबित हुई। ना इराक पे कब्जा हुआ, ना इराक हमने बचाया, ना यमन पे कब्जा हुआ, यमन हमने बचाया, ना शाम पे कब्जा हुआ, शाम हमने बचाया, ना ही मस्जिद अक्सा को हम गिरने देंगे, इसको भी हम तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो 100% पसंद आई होगी। अगर इसी वीडियो का पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल डिजिटल एजमेंट्स हिंदी पर विजिट करिएगा, यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, या उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूँगा, आप ज़रूर देखिएगा। वह भी इसी तरह पूरी पैसा वसूल वीडियो। और दोस्तों जिस तरह पाकिस्तानी मीडिया आपने देखा होगा, इजराइल और हमास के बीच में जिस तरह का युद्ध चल रहा है, उसमें इजराइल ने पूरी तरह से ठान लिया कि हमास का खात्मा करके ही रुकेंगे। और दोस्तों अरब देशों ने भी, अब अरब देशों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है और गजा के लोगों ने भी भुगता है। या गजा के लोगों को खुद की जिम्मेदारी थी कि जिस तरह इजराइल ने उनके खास इजराइल के खिलाफ हमास ने जो प्लान किया था उसको रोकते। लेकिन अब दोस्तों आपने देखा होगा किस तरह से अब एकदम से गजा के लोग भी इजराइल के सामने हाथ पैर जोड़ रहे हैं। लेकिन इजराइल की अब पूरी तरह से भयंकर तरीके से अब हमास को नस्ता नाबूद करने के मूड में आ चुका है। और इजराइल ने इससे पहले हमास को कई बार अड़े हाथों लिया था और इजराइल को भी इस बात की भनक नहीं थी कि इस तरह का बड़ा हमला किया जाएगा। आपने देखा होगा किस तरह सैकड़ों की संख्या में म्यूजिक फेस्टिवल में उन्होंने हमला किया था और वहाँ से लोगों को बंदी भी बनाया था। अब इजराइल आपने हर एक नागरिक को सेव करने की कोशिश करेगा और जिस तरह से देखा होगा बंदी बनाए गए सभी नागरिकों को इजराइल किसी भी कीमत पर छुड़वा कर मानेगा।
लेकिन उधर हमाज के लोग चाहते हैं कि जो इजराइल की जेलों में जितने भी हज़ारों की संख्या में हमाज के आतंकवादी हैं उनको छुड़ा लिया जाए। ऐसा इजराइल कभी भी नहीं करेगा। और दोस्तों दूसरे अब ईरान मुरून सारे जितने मुस्लिम देश है, भले ही आए दिन हमाज के बारे में राग अलापते हों, लेकिन इन सब की किसी भी कोई भी हिम्मत नहीं हो रही कि किसी भी तरह इजराइल के साथ जाकर कोई भी पंगा ले ले। आपने देखा होगा इजराइल ने कई एक बार तो 7-8 कई मुस्लिम देशों को एक साथ टक्कर दी थी। तो दोस्तों इजराइल की ताकत को सब लोग जानते हैं, तो अब पाकिस्तानी मीडिया भी जानता है और पाकिस्तान से हर जगह मस्जिदों के बाहर फंड पर चंदा इकट्ठा करने के नाम पे यह पैसा कमाते हैं और कहते हैं कि फंड हम वो फिलिस्तीन भेजेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। यह इस्लाम और जिहाद के नाम पर अपनी लोगों को लाहौरी चूरन बांटते रहते हैं। हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और दोस्तों खास क्वालिटी वाली वीडियो हर एक लफ्ज़ मैं एडिट करके लाता हूँ आपके लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे हौसला अफजाई के लिए वीडियो को कमेंट कीजिएगा और जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो वो ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।